So, as you are aware, Daewoo was launched last year in October, and it took us almost 5 to 6 months to set up the operations here. We had to create the infrastructure, we had to honor government's compliances, do a lot of infrastructural readiness like warehouses, GST number, and stuff like that. Then we had to hire people, train them. एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 4 से 8 महीने लग जाते हैं. अभी भी वो जर्नी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है. सो वी आर स्टिल लॉन्चिंग स्टेट बाय स्टेट, और अभी तक हम लोगों ने इंडिया में नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया कवर किया है. एंड वी आर नाउ गेटिंग इनटू सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, एंड देन साउथ विल कम लेटर. सो हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च से पहले पहले वी शुड बी अवेलेबल पैन इंडिया. तो ये तो हमारी जर्नी होगी जहाँ तक कवरेज का सवाल है. जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमने ब्रॉडली डेवू के प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज पावर एंड एनर्जी, इन विच वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज, 2-wheelers as well as 4-wheelers. 4-wheelers include car, truck, tractor, bus. And then we have inverter batteries, we have sine wave inverter, we have lithium inverter, then we have UPS, we have SMF battery, we have telecom batteries, solar panels. So this power energy is a complete sector. ये हमने more or less launch कर दिया है in about 11 states, as I mentioned. Then the second category is electronics. Electronics has large appliances, medium appliances, and small appliances. I will start with small appliances are the ones which are used in kitchen and home, in which we have launched some 3 to 4 products already. Induction plates, irons, electric kettles, and sandwich makers, rice cookers. So we have launched a few products. We are now going to add room heaters and also geysers. Then the medium appliances, normally the coverage is about water purifiers, air purifiers, coolers, fans. There are so many products that we can launch. We have only started with alkaline water purifiers, and then large appliances we are yet to launch. Then the third category is cycles, e-cycles, the electric cycles जो है. So these are the broadly 3 categories in which we are going. इसके अलावा बहुत सारे और categories हैं, like the grooming products, which includes the shaving kits and also the hair dryers and all. इसके अलावा smart home products हैं, gaming products हैं, बहुत सारे products हैं, hearables हैं, wearables हैं. So there are a lot of categories, and our expectation is and our readiness is towards launching more than 350 products in the next 2 years. Once done, Daewoo will be the biggest range of products available under any single brand. Because आपने देखा होगा large appliances के brand है, small appliances के brand है, cycle के brand अलग है. We will be first company which will have products in all the categories. So that will give us a unique proposition. Customer can use 1 or 2 or 3 products, and then once he is happy and satisfied with our product quality and the service, then probably he will adopt my other products very quickly. तो ये हम एक advantage लेके चल रहे हैं. Having said that, there are some challenges also, let me admit. One obviously is that it takes a lot of time to put together the infrastructure, warehouses, sourcing of material, because we are importing also. We are now trying to increase our share of manufacturing from within India, so that we have the price advantage as well as Make in India initiative we need to promote. सो जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ बैठ के क्वालिटी पे डिस्कशन करना, प्रोडक्ट की ओवरऑल स्टडीनेस और स्टेबिलिटी पे बात करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे टाइम लगता है. एंड द अदर थिंग इज़ टू हायर ट्रेंड मैन पावर एंड फर्दर ट्रेन देम ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर पॉलिसीज. सो दीज आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. सो उसको कवर करते करते बहुत समय लगता है. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. अगर मैं ब्रांड या मार्केटिंग की बात करूं तो इट हैज़ बीन अ रियली रोलर कोस्टर फॉर अस. We have got such a good response, even though relaunching a brand after a gap of 18-20 years is not a small thing, and we were like we were concerned कि customer कैसे हमें accept करेगा. But I'm very very happy to report that there has been a tremendous acceptance to the brand, acknowledgement of the brand. People still remember Daewoo Electronics and Daewoo Motors of the past. So there is a very positive vibe about the brand, and even though the brand had left India and came back after 18-20 years, people have only good stories to tell me. मैं अब जब ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मेरे घर में 20 साल देवू का रेफ्रिजरेटर था, या मेरे घर में वॉशिंग मशीन थी, या किसी के घर में टीवी था. So people have only good stories to tell.
So we have got lot of acceptance from that. मतलब there is no resistance कि ये कौन सा ब्रांड है. सेकंड, आई थिंक हमें एक एडवांटेज और भी रहा, वो ये था कि वी हैव द लेगेसी ऑफ ए साउथ कोरियन ब्रांड. इस समय जो एक सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा एंटी चाइना, और वो एक सेंटीमेंट होने की वजह से द फैक्ट दैट पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू द चाइनीज ब्रांड्स, right? So we have a ready-made solution that we are from Korea. Our legacy is from Korea. And not only that, Daewoo is today present in more than 110 countries. So when people Google and try to look for us, they find it all over the world. अब लोग यहाँ से जब ट्रैवल करते हैं, they go to Thailand, they go to Europe, they go to the Gulf countries. So everywhere Daewoo is available. As I mentioned, in 110 countries Daewoo is available. So that makes it a global brand. तो थोड़ी acceptance लोगों को और आसान हो जाती है. अगर मैं साउथ कोरियन लेगेसी की बात करूं तो इफ यू सी LG एंड सैमसंग, दे हैव वेरी हाई एक्सेप्टेबिलिटी इन इंडिया. इफ यू सी Hyundai और Kia, they have very high acceptability of India. So people have come to accept the Korean technology, the innovation. बहुत लोगों को पसंद है कोरियन ब्रांड्स की, जो द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है. तो इफ यू सी, दे आर अफोर्डेबल ऑल्सो. If you see in cars, Honda or Toyota are expensive, but Hyundai and Kia, they give you value for money. And the products are second to none. They are wonderful products. Similarly, LG and Samsung. So the Korean, overall जो Korean एक perception है, that is of high technology, global brands, affordability. We want to continue with that legacy. India में, if you see, more than 70 to 75% people fall in the middle income category. They're either middle income or slightly upper middle कह लीजिए आप. So there are something like 52% people who earn between 15,000 rupees a month. I'm talking of household. 15,000 rupees up to almost 5 lakh rupees, which is about 40 to 50,000 a month. This constitutes about 50% of households in India. There are another 30% people who earn between 5 lakh to 30 lakh rupees per annum. तो 5 lakhs हो गया करीब 40 to 45,000 per month, and 30 lakhs का मतलब हो गया 2.5 lakh. तो 80% ऑफ इंडिया जो है, 75 to 80% ऑफ इंडिया, वो 15,000 से लेके एंड 2.5 लाख रुपीस के बीच में है. See, if you want to succeed in India and also have a competitive pricing, it is mandatory that we go with the Indian manufacturing. And to go for Indian manufacturing, what we are doing is we are working very closely with lot of manufacturing OEMs. Luckily in the last 3-4 years, India में एक manufacturing hub का एक ecosystem develop हो रहा है. पहले क्या था, हर चीज़ चाइना से इम्पोर्ट होती थी और ब्रांडिंग भी वहीं से होके आती थी. अभी क्या, बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपके जो OEMs हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको पता, बहुत सारे OEM और बहुत सारे लोकल अब डेवलप हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो वी आर वेरी लकी टू हैव कम टू इंडिया. जैसा मैंने पहले भी कहा, वी आर कम टू इंडिया एट द राइट टाइम, रीलॉन्च एट द राइट टाइम. तो अभी हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है वो इतना बढ़िया है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इतने अच्छे दे रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो OEMs हैं, एंड दे स्पेशलाइज टू मेक वाइट लेबल फॉर अदर्स, एंड देयरफॉर वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम कि हम अपने प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करें और हमारे स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट उनसे हम बनवा के लें. हमारा विजन है कि 2 साल में वी शुड बी अबाउट 70% हमारा जो रेवेन्यू है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से आना शुरू हो जाएगा. अभी तो हम कुछ इंपोर्ट्स भी करते हैं, बैटरीज भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, बट विद इन 2 years वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड कि 70% हमारा जो प्रोडक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो इंडियन मेड प्रोडक्ट से आना चाहिए, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और मेक इन इंडिया का एडवांटेज हमें मिले. डॉलर की फ्लक्चुएशन, उसके अलावा जो ट्रांजिट सेलिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ रेडी मटेरियल मिलता है, हम फ्लक्चुएशन से बाहर आ जाते हैं. इंपोर्ट ड्यूटीज़ या बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे बच जाते हैं. सो ऑब्वियसली हमें मेक इन इंडिया बहुत सूट करता है, एंड वी आर गोइंग विद इट, एंड विद इन 2 years वी वांट टू कम टू एटलीस्ट 70% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बी सोर्स फ्रॉम इंडिया. And after 2 years or 3 years, we will take a call whether we want to invest in our own factory in India or not, or are we happy working with the OEM only. देखिए, जब आप एक ग्लोबल ब्रांड लेके आते हैं तो साथ में आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी लेके आने पड़ते हैं, तभी कस्टमर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और ये कहेगा हाँ, आप तो वाकई ग्लोबल ब्रांड है.
कि आपने और किसी कंट्री से, कोरिया से या और किसी एसोसिएट कंट्री से आप क्या टेक्नोलॉजी लेके आए। तो आई एम वेरी प्राउडली वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट हमने कुछ 4-5 बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं ऑलरेडी। और जैसे मैंने कहा कि हम करीब 350 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं 2 साल में, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए हम हर क्वार्टर, हर 6 महीने में 1 या 2 नए प्रोडक्ट, मतलब बढ़िया वाले, कुछ तो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं विद गुड लुक्स एंड गुड क्वालिटी, बट कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लेके आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अल्कलीन वाटर प्यूरिफायर। Post COVID, all doctors, all dietitians, everybody recommends only alkaline water because alkaline water strengthens your body, it makes your body healthy. RO water makes your body weaker अंदर से. So we have launched a range of alkaline water purifiers not only for domestic use but even for office use. Okay. First time in India. आज तक इंडिया में किसी के पास कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर नहीं है। आपको ऑफिस के अंदर या तो आरओ का पानी पीना पड़ता है या वो डिस्पेंसर के ऊपर 20 लीटर का जार लगा के लोग उसको पानी को पीते हैं। हमने लॉन्च किया है एक पूरी रेंज ऑफ कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर्स एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दैट हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि हमने जो मशीन बनाई है उसी के अंदर ही प्यूरिफायर लगाया है। तो यू डोंट नीड द 20 लीटर जार्स नाउ। सो ना सिर्फ आपको हेल्दी वाटर मिलता है बल्कि रोज का जो आपका एक्सपेंस है तो पानी के जार खरीदने का और उसको पीने का, जिसकी क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है, तो आपको अब वो जार नहीं लगाने, आप हमारी मशीन लगाइए। मेरी मशीन ही पानी को प्यूरिफाई भी करेगी, अल्कलाइन भी करेगी और आपको डायरेक्ट पानी अच्छा मिला करेगा। एंड मतलब इट इज अ डिस्पेंसर विच हैज अ इनबिल्ट प्यूरिफायर। सो ये एक हमने किया और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। अभी आज की डेट में हमारा बहुत ही मतलब हम बैंक्स में जा रहे हैं, आईटी कंपनीज में जा रहे हैं, हमारे पास होटल्स, हॉस्पिटल्स, बहुत इतनी डिमांड है हमारे पास कि वी आर एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय द रिस्पांस। इसी तरह से जो डोमेस्टिक अल्कलीन वाटर प्यूरिफायर, अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए का अल्कलीन वाटर प्यूरिफायर मिलता है। यू विल बी सरप्राइज, वी आर स्टार्टिंग आवर रेंज फ्रॉम 20,000 रुपीज। जितने में आप मार्केट से आरओ लेके आएंगे हम इतने में आपको अल्कलीन वाटर प्यूरिफायर देंगे। And then the models keep on increasing. Our best domestic model with digital everything, including cold water. आज तक किसी ने वाटर प्यूरिफायर में हॉट वाटर तो दिया है, कोल्ड वाटर किसी ने नहीं दिया। हमने अल्कलीन वाटर प्यूरिफायर जो दिया है घर के लिए, छोटी मशीन है, उसके अंदर भी हमने कोल्ड वाटर दे दिया आपको। तो आपको अभी बॉटल में भर के फ्रिज में नहीं रखना है, सीधा उसी से ठंडा पानी ले लीजिए, सीधा गर्म पानी ले लीजिए और नॉर्मल पानी भी ले लीजिए। So it is a really innovative product. So alkaline water purifier is one of the top products we are into. Then another very innovative product we have launched is a lithium hybrid inverter. तो अभी क्या होता है, जैसे घर में लोग बैकअप के लिए एक ट्रॉली रखते हैं, 2 बैटरी रखते हैं, उसके ऊपर एक इन्वर्टर रखते हैं, टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। ऑल्सो उसके टर्मिनल्स वगैरह निकले होते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं या छोटे बेबीज हैं तो वो थोड़ा एक डेंजरस रहता है। इनफैक्ट मेड भी वहाँ सफाई करने नहीं जाती है। हमने जो इन्वर्टर बनाया है उसमें बिल्ट इन लिथियम बैटरी है और वो वॉल माउंटेड है। तो आप उसको दीवार पे टांग दीजिए, नीचे पूरा साफ है ना उसमें, क्योंकि लेड एसिड बैटरी नहीं है, लिथियम बैटरी है। दूसरा, उसके अंदर ना कोई महक आएगी, ना कोई फाउल स्मेल आएगी, ना कोई बैड ओडर आएगी, क्योंकि वो लेड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तो स्मेल आती है। तो आपने अपने घर में उसको रखा हुआ है, ये लेड एसिड ऊपर है और वो उनकी होती है 1 साल की, 2 साल की वारंटी, हम दे रहे हैं 5 साल की वारंटी। और चूंकि लिथियम बैटरी है तो 15 से 20 साल की लाइफ है उसकी। सो अगेन वी आर नाउ प्रोमोटिंग इट एंड बहुत अच्छा हमें उसका भी रिस्पॉन्स मिला है। तो इसके अलावा अभी हमने QLED की टीवी की रेंज लॉन्च कर रही है अभी ने, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी, चूंकि Daewoo is a South Korean brand, we have access to the global technology. We will be bringing more and more innovative products to make the life of Indian consumer more happier and more comfortable. Like I just mentioned that the Indian middle class is huge. But you know, that itself is the opportunity. Opportunity कैसे? 4 मेन अगर हम प्रोडक्ट को पकड़ें जो हर घर में यूज होने चाहिए, 1 इज टीवी, 1 इज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, आपके लाइफ स्टैंडर्ड को एक ऑटोमोबाइल के अलावा आपको ये 4 प्रोडक्ट से देखा जाता है कि आपके घर में कितनी बेसिक चीजें हो गई हैं, कि कितनी सुख सुविधाएं हैं। यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू द फिगर्स। In India, not by population, but by household. And we take household as population of 5. कि 5 लोगों को हम एक हाउसहोल्ड मानते हैं, फैमिली के 5 लोगों को। पूरे इंडिया की अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो करीब करीब हम 35 करोड़ हाउसहोल्ड पकड़ते हैं। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड, ओनली 70% ऑफ द हाउसहोल्ड हैव टीवी।
140 करोड़ से नहीं ले रहा मैं, 35 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब हर घर में, उसमें भी 70 फंड अभी टीवी आया सिर्फ। जबकि आप ये कहेंगे मेरे और आपके घर में तो 3-3 टीवी लगे हैं, हर कमरे में एक टीवी लगा, उसको भी ले लीजिए तो भी 70% होता है। तो अगर मैं वो मल्टी टीवी वाले निकाल दूं तो आप मान के चलिए 70 की रेशो और नीचे गिर जाएगी, 0.1, मतलब 30-40 में अंतर हो जाएगा, शायद 50 आ जाएगी मान लीजिए, ठीक है। तो टीवी की बाय हाउस होल्ड सिर्फ 70% एक्सेप्टेंस हुई है अभी तक, एडॉप्शन जिसे हम कहते हैं। सेकंड प्रोडक्ट इज रेफ्रिजरेटर। पूरे इंडिया में ये जो हाउस होल्ड मैंने आपको बताया 35 करोड़ 350 मिलियन, ओनली 33% हैज रेफ्रिजरेटर, ओनली 18% है वॉशिंग मशीन एंड ओनली 7% है एयर कंडीशनर। तो इतने सालों की जर्नी के बाद भी ये आज के, तो आप सोचिए कितना अभी स्कोप है इंडिया में ग्रो करने का, क्योंकि कस्टमर ये प्रोडक्ट मांग रहा है तो कोई मैन्युफैक्चर भी करेगा, कोई ब्रांड उसको सेल भी करेगा, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सेल और जो कंजम्पशन होगी यही आपका जीडीपी बन के उठेगा। तो आप लोगों का लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर रहे हैं और आप कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी कि आप लोगों को आमदनी बढ़वाइए अगर, तो वो खर्चा करते हैं, वो कंजम्पशन बढ़ाते हैं, एंड कंजम्पशन लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये सारी स्टोरी को हम अगर टोटल मिला के देखें, जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर जो है अब वो इस तरफ जा रहा है कि मुझे अपना लाइफ स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव करना है। देखिए, जब आदमी अपनी बेसिक लाइफ शुरू करता है तो वो अपनी, जैसे एक जमाने में हम कहते थे 60s 70s 80s में रोटी कपड़ा और मकान, अब लोग उसके आगे निकले तो लोगों ने एजुकेशन, हेल्थ और इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया। अब लोग उसके भी आगे निकले कि भी बच्चे की एजुकेशन का लिए भी मैंने इंतजाम कर दिया, और ये भी, जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, अब मुझे कहाँ लेके जाना है, अब मुझे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। आजकल नहीं, लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी हो गई है। अब आप और देखिए, कपल जो है जॉब कर रहे हैं, तो अगर लेडीज भी जॉब कर रही हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा घर में गैजेट चाहिए। पहले आटा जो था हाथों से गूंदा जाता था, बट वो 15 मिनट का प्रोसेस था। आजकल आपके पास फूड प्रोसेसर्स है ना। इसी तरह से पहले आप कपड़े वैसे धोते थे, आज वॉशिंग मशीन यूज करना चाहते हैं, ऐसी रेफ्रिजरेटर, ऐसी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब कुछ इसमें बहुत सारी चीजें, माइक्रोवेव है जैसे, ये सब नेसेसिटी बनती जा रही हैं। तो जहां तक कंज्यूमर बिहेवियर का सवाल है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, यू स्टार्ट नॉट ओनली मेकिंग योर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल विद एयर कंडीशनर और टीवी और ये सारी चीजें, बट ऑल्सो वो नेसेसिटी इस चीज की भी है कि कैसे हम कम समय में अपना किचन का या घर का काम खत्म करें। चाहे वो माइक्रोवेव है, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर्स हैं, चाहे वो डिश वॉशर्स हैं, इनका प्रचलन इसीलिए तो बढ़ रहा है। तो अब ये कंज्यूमर बिहेवियर में ये सब चीजें ऐड हो रही हैं कि हर आदमी सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ रहा है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी कर रहा है और अपना किचन का या घर का काम जल्दी भी खत्म करना चाह रहा है। तो ये सारे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो, उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और ये आगे और बढ़ती रहेगी। और जैसे मैंने आपसे परसेंटेज में नंबर्स बताए, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड से हम बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। For more information visit www.mobilityindia.com